Welcome to Phonicspedia. My name is Nishal Soni. I am the founder of Phonicspedia. I myself qualified UGC NET examination for continuously 5 times and JRF qualified. So I am having pretty much good idea about how UGC create the questions, what kind of pattern they follow, and I will going to tell you about my strategies to qualify this UGC NET examination in my first attempt. And I was doing the job 9 to 6 job that time when I qualified to this net examination for my for the first time, right? So I am very much new to this YouTube platforms, and I usually don't create such type of videos, and my schedule is very tight, so I usually don't get enough time to create such kind of videos, and I am not doing any kind of commitment that I will create the videos further. This is my first video, and on the basis of the response on this video, I will try my best to shoot some more videos like on science, like how you can prepare, because we are having very limited time, and I hope this video will going to help you in your preparation. Okay, so in this video we will talk about the examination system and what are the marks distribution, how you can prepare. Okay, so before starting, let me just give you my uh, uh, story background related to my first qualification. That and also one more thing. This video will be in the two formats: the Hindi and English combination will be there, so that it can contribute to each and every listener. Right. So, UGC NET examination, first of all, how I started my journey. Okay, so when I was working in State Forensic Science Lab, I got to know about UGC NET examination because when I was in master, I was not aware about this examination. Okay, so when I started my job, then I got to know about this, and तब मैंने सोचा कि शायद मुझे एक attempt देना चाहिए, and with that time I was not serious enough. Okay, so I studied for a very few hours, around 1 or 2 hours in a day. And even मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब वो एग्जाम था उसकी एक रात पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि कल एग्जाम है, और एडमिट कार्ड इश्यू हो गए। हमारे एक सर थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आपका पिन आ गया है क्या, तब मुझे पता चला था कि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं आपको सीरियसनेस बता रहा हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को किस तरह से लिया था, कितने हल्के में लिया था, राइट। और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसी अटेम्प्ट के अंदर मेरा फर्स्ट क्वालिफिकेशन हुआ था यूजीसी नेट में, और जेआरएफ के लिए 14-15 मार्क्स पीछे था, राइट। तब मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ी सी सर्विस और करूँ तो शायद मैं सेकेंड अटेम्प्ट इस एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक कर पाऊँ, राइट। तो इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं और क्या क्या मेथोडोलॉजीज हम फॉलो करते हैं बेसिकली। ओके, सो ये एग्जामिनेशन जो है 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 2 तरह के इसमें पेपर होते हैं, पेपर 1, let me just use my pen, paper 1 and paper 2. So paper 1 is related to teaching aptitude, research aptitude. It's about the examination system, it's about the governance, it's about the environmental system, it's about the ICT. Okay, so basically they ask you about all kind of questions not related to forensic science in paper 1. Even you're going to have the passages also, you're going to have the tables in which they will need to ask about the mathematical questions. Okay, and paper 2 is related to forensic science, purely related to forensic science. So जब मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था, तब ये पेपर एनालिटिकल रूप में इतना आगे नहीं था। In that time, they usually ask direct question, like we can say 30 questions will be direct and 70 questions will be based on the analytical and research. Okay, but right now in 2025,
the 90% paper is on the analysis and the 10% is on the knowledge base. Okay, so अगर आप अपनी प्रिपरेशन एक वर्ड होता है रट्टा मारना वैसे तौर पे कर रहे हो तो शायद आप इस एग्जामिनेशन को अभी क्वालिफाई करने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे, राइट? वाई? क्योंकि अगर आपको जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिम, ओके, जिसके अंदर हम जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स होती है उसको ये एनालिसिस करके हम ये पता लगाते हैं कि ये दोनों ग्लास के जो पीस है वो सेम है या नहीं, राइट? अगर आपको वो प्रोसेस नहीं पता है कि व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड दे आर यूजिंग, okay, what are the properties of glass, then you cannot answer a single question, because it's not like they're going to ask you about the full form of grain. Okay, it's not about they are asking you about any IPC. Okay, they are not asking you about the searching method or something like that. Okay, they will going to ask you about the crime scene reconstruction, the crime scene related questions, the analytical questions in which you have to use your brain. Okay, so पेपर 2 जो हमारा है इसके अंदर 10 यूनिट होती है. सो द वेरी फर्स्ट यूनिट इज अबाउट द जनरल फोरेंसिक साइंस, देन वी आर हैविंग द केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी. आई होप syllabus is same here. Just a second. Okay, then of course then the second unit is about the instrumental, then the toxin chemistry, then we are having the firearms, ballistic and all tool marks are also there. Then we are having the fire and arson, photography. Then we are having the trace evidences, hair, fiber, pollen, dust, and mobile forensics and computer forensics. Then in the 8th unit, we are having the biometric system. It can be the fingerprint, it can be the look print, it can be the iris, voice sample. Then we are having the document examination, like question document rate. Then we are having the forensic medicine at the very last. Okay, so the weightage is basically about the 100 question. 100 question will be there, and the total marks will be 200. Okay. So total we are having the 50 questions here and the weightage is 100 marks. So we are having the 300 marks. Okay. So out of 300 you have to get around 200 to 220 marks to qualify JRF. Okay. It depends on the caste. Okay. So if you belongs to general, so in that condition 215 to 230 marks are enough. Okay. Now the very first thing, आपको कैसे शुरुआत करनी है इसकी. सो फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. तो मैंने क्या किया था, मैंने मल्टीपल प्रिंट आउट सिलेबस के लिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिलेबस, सो यू हैव टू गेट अराउंड 2 to 3 प्रिंट आउट्स ऑफ दिस. देन एक सिलेबस में आपको सबसे पहले 3 कैटेगरीज डिवाइड करनी, H, M, A. E basically easy, M for medium, H for hard. Okay. For example, the very first unit is easy because it belongs to general forensic science. Okay. तो इसमें इतना कुछ नहीं है क्योंकि बैचलर फर्स्ट ईयर में ही हम जनरल फोरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जनरल फोरेंसिक साइंस क्या होती है, हु वाज द फाउंडर, एंड फिजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, ब्रेन मैपिंग क्या होती है, नार्को इंडेक्सेस क्या होती है. और इस यूनिट से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिट 1 की हम बात करें तो यूनिट 1 से बेसिकली अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन टोटल पेपर, राइट. तो जो वेटेज है वो 12 से 14 नंबर का है इस पूरी यूनिट का. इट डिपेंड्स एंड इट चेंज एवरी टाइम, बट जो मैं देखता आया उतने सालों से, और जैसे हमने जो यूजीसी नेट स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर भी हमने जो मेथोडोलॉजी फॉलो करी उसके अकॉर्डिंगली ये जो यूनिट है वो इतनी इम्पोर्टेंट अभी तक नहीं है. इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रूमेंटल यूनिट. ओके, आई होप इन 2022 और इन 2023 the UGC NET paper was totally dependent on this unit. Around 20 to 30 questions was asked from this unit. Okay, तो 40 से 60 नंबर का वेटेज आपको यही यूनिट दे देती है. ओके, एंड देन वी आर हैविंग द बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी. इस यूनिट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, तो अगर हम मोटा मोटा लेकर चलें तो अराउंड 8 to 12 क्वेश्चंस हम इस यूनिट से
उम्मीद लगा सकते हैं कि इस यूनिट से इतने पूछे जाएंगे. Now, when we talk about the fourth unit, which is related to toxicology and chemistry, it's a very, very important unit. Okay, and usually जो बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उन लोगों की यही 2 यूनिट्स सबसे डाउन पे होती है. फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि वो एक टफ सब्जेक्ट है. सिमिलरली टॉक्सिकोलॉजी और केमिस्ट्री भी एक टफ सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ों को याद रखना पड़ता है. और जहाँ तक मुझे याद है उस एग्जामिनेशन में इससे भी 30 क्वेश्चंस आए थे. इवन एक इंडेक्स आई थी जिसके अंदर उन्होंने हमें एक रीडिंग्स दी थी और हमें कैलकुलेट करने को बोला था परसेंटेज. तो अब ऐसी जगहों पर आप अगर लाइक फॉर्मूलाज नहीं याद रख पाते हो कि GCMS में जो रीडिंग्स आती हैं उनको कैसे हम एनालाइज करते हैं, वो कंडीशंस में आप अपने 10 to 20 मार्क्स ऐसे ही यूज कर देते हैं, राइट. तो ये जो 2 यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द फोर्थ यूनिट एंड द सेकंड यूनिट. ओके, सो दीज आर इन द हार्ड कैटेगरी, दिस इज इन द मीडियम कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी. ओके, दिस इज ऑल्सो हार्ड. Then we are having the firearm forensic examination ballistic. It is also one of the very important things because they basically ask you like the composition of propellant. They can ask you about different kind of firearms. They can ask you about the ranges. They can ask you about the markings. They can ask you about the patterns formed in close range firearm and the shootout cases and all. Okay, and even they can ask you like how you're going to reconstruct the crimes related to tool marks, how you're going to rescore the erased marking from the metal surfaces and all that. So this unit is all very, very important, and they can ask about 20 to 30 questions from this unit. Okay, then we are having the fire and arson. Again, this is under the medium category. Okay, and usually they ask you about the photography techniques, they ask you about the IEDs. Okay, so you can expect around 1 to 2 questions from the IED. Okay, similarly in the explosives they can give you the chemicals and even the chemistry reactions, and they can say you like they can ask you to rearrange those. They can give you the flash points of petroleum products, and they can ask you to rearrange those according to their mass, according to their flash points. Okay, so multiple things are there, multiple kind of questions they can ask. Okay, then we are having the seventh unit. Okay, this unit is about the trace evidences. This unit is about the cement mortar complete and distal forensic. So the distal forensic part है, around 2 questions are like will be there. Okay, these 2 things are not that much important. हार्डली आज से 6 सालों तक जब से मैंने एग्जाम देना शुरू किया है तब से इस यूनिट में मोबाइल फोन से कंप्यूटर फोरेंसिक्स या डिस्क फोरेंसिक्स के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए. अगर ये आपकी यूनिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है. Rather than you can focus on these things because they can ask you about the hair. Right? For example, they can ask you about the categorization. They can ask you about the dog hair, cat hair, camel hair. Multiple things are there. Horse hair is also there. They can ask you about the pollens. They can ask you about the diatoms. Okay, इन diatoms का जो outer surface है वो कैसे बना होता है, या डाइटम्स कैसे हमें हेल्प करते हैं, एंटी मॉर्टम में हेल्प करते हैं, पोस्ट मॉर्टम में हेल्प करते हैं. इससे एक पैसेज भी बन सकता है 10 नंबर का, 5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज में, क्योंकि यूजीसी नेट अब जो लास्ट क्वेश्चन होता है 95 to 100 जो क्वेश्चन होता है वो एक पैसेज के रूप में हमें देता है. इवन आई थिंक 2 years बैक देयर वाज 2 क्वेश्चंस related to passages in paper 2 only. Okay, in paper 1 we usually get 1 passage, right? But in paper 2 we got around 2 passages related to crime scene reconstruction. Okay, and then we are having the fingerprint, then we are having the voice analysis. Usually अभी जो है voice analysis से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो ये जो है ये बहुत important है क्योंकि इसके जो नोट्स है वो इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं है. और अगर वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, और देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, राइट?
तो 2000 में से 1000 लोग जो हैं वो इतने सीरियस नहीं होते हैं एग्जाम को लेकर, तो आप उनको एकदम से बाहर कर दो कि उनको नहीं आएगा, उनका फर्स्ट टाइम है, किसी ने प्रिपरेशन करी है, कोई ऐसे ही देखने आ गया है, ठीक है, ऐसे फॉर्म भरते थे, दोस्त दे रहा है मैं भी देता हूँ। पीछे बचे जो 1000 लोग, अगर हम मानते हैं कि 1000 लोगों में से 500 लोग जो है उन्होंने प्रिपरेशन करी है, लेकिन उन्होंने वही सेम चीज जो कहते हैं हम रट्टा मारा है, तो बात अलग है, उनको भी हटाओ। रिमेनिंग जो 500 कंपटीशन उनमें है, ठीक है, उसमें भी हमें ये देखना है कि कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन जो है लाइक वो कैसे फॉलो करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट दे हैव गिवन, ओके, हाउ मच टाइम दे हैव प्रिपेयर्ड, okay, how much revision they have done, because revision is a key element here. Okay, I know it's very boring to revise the whole thing again and again, but revision is the key element for the UGC NET examination. Okay, अब हम ये मानते हैं कि ये जो 500 लोग हैं इन्होंने सेम प्रिपरेशन करी है, सेम उन्होंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे वॉइस एनालिसिस से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स से कोई क्वेश्चन आ जाता है, सीमेंट की कंपोजिशन से कोई क्वेश्चन आ जाता है, या डाइटम्स हो गए, या पेंट हो गया, वार्निश हो गया, लेकर हो गया, इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल स्टूडेंट्स गलत करके ही आते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों के नोट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो टॉपिक्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना ज़्यादा उन पर फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी एक लिमिटेड सिलेबस होता है जो फॉलो होता है, और उसमें भी ये सोच के फॉलो नहीं किया जाता कि आगे जाके बच्चे को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे, राइट। तो इनके नोट्स इतने अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये एक बहुत ह्यूज टॉपिक है। माई स्पेशलाइजेशन इज इन डिजिटल कॉन्सेप्ट, और आज के करीबन 7 से 8 सालों में भी डिजिटल फॉरेंसिक्स को मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाया हूँ, ओके। Although I'm doing really good in digital forensics, but of course, if your favorite subject is toxicology, so you can understand what I am saying, right? जो भी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है हमें उसकी नॉलेज होती है, लेकिन डीप नॉलेज, एकदम डीप नॉलेज फिर भी हम गेन नहीं कर सकते, राइट। तो जो कंपटीशन होता है वो 500 स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है, वो उन स्टूडेंट्स के बीच में है जिन्होंने इन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया है, थोड़े से मॉक टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं इन टॉपिक्स को लेकर, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन वी आर इन द 9th यूनिट। इस यूनिट में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये यूनिट सबसे इजीएस्ट यूनिट्स में से एक है, जो कि इतनी हार्ड नहीं है, तो इसे हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। Similarly, the 10th unit, it comes under medium, okay, for me, okay, and it can be hard for you, okay. So the very best book is Anil Agarwal, but that book is yours, okay. So if you are preparing from today in that condition, you cannot opt for Anil Agarwal. What you can do, you can use any other book. For example, Gautam is there. It book from the author Gautam Vishwas, I think, surname, I forgot the name. Okay, so I think the Gautam Vishwas is the author name, and he is having one book in which he is having 3 to 4 chapters related to forensic medicine. Okay, so अगर आप चाहो तो वहाँ से भी ये पढ़ सकते हो। इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें सेक्सुअल ऑफेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर वो सेक्सुअल प्रोवेंस के बारे में पूछते हैं। सिमिलरली वो ओरिजिन, सेक्स, एज, स्टेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एक टॉपिक बन जाता है। स्कल सुपर इम्पोजिशन या फेशियल रिकंस्ट्रक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टीथ से अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, लाइक बाइट मार्क्स हो गया, डेंटेशन हो गया, या हमारे मेथड्स होते हैं एनालिसिस के। तो इस टीथ को अगर आप नोटिस में लाओगे अपने, तो आपकी प्रिपरेशन में आप उन 500 लोगों से बहुत आगे हो जाओगे, राइट। Similarly, we are having injuries and wounds. So these kind of topics are very helpful to qualify UGC NET examination, right? अब हमने क्या किया, हमने मल्टीपल प्रिंट आउट्स किए, हमने अपने प्रिंट आउट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इजी, मीडियम, हार्ड, ओके। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि आपको हार्ड पे फोकस करना है ना,
लेकिन यहाँ मैंने अपने केस में एक अलग मेथोडोलॉजी फॉलो करी। हमने लाइक हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इजी जो है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अराउंड 20 to 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो हमें इजी को इतना बेस्ट बनाना है कि शायद 15 में से हमारे 14 क्वेश्चन तो सही हो या 13 क्वेश्चन तो सही हो। ठीक है, ऑल्सो यूजुअली दे आस्क यू अबाउट द रिसर्चेज आल्सो। ओके, इन दोस कंडीशन नो वन कैन डू एनीथिंग। इवन फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, तो जो आपने पढ़ा है वही मैंने पढ़ा है, वही वो 500 लोग भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा उसमें निकल के आएगा जो उसका सही आंसर देगा, ऑल्सो अगर वो गेस नहीं कर रहा हो। गेस करने की भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आप एक इफेक्टिव गैस कैसे मार सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में लक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, नाउ इजी मीडियम हार्ड हो गया, हमें सबसे पहले इजी को देखना है कि हमारे उसमें मार्क्स डिडक्ट ना हो, उसके बाद हमें मीडियम पे जाना है, उसके बाद हमें हार्ड पे जाना है। इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग फॉर द हार्ड, क्योंकि हार्ड में जो क्वेश्चन है वो प्योरली ऑन एनालिटिकल बेसिस और रिसर्च बेसिस पे आते हैं। तो उन सारी कंडीशंस पे अच्छे मार्क्स ग्रैब करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने जैसे एक यूनिट है टॉक्सिकोलॉजी और आपकी वो यूनिट इतनी अच्छी नहीं, और आपने उसको 15 से 20 दिन दिए अच्छा करने में, और आप यूजली अब आप सबसे बेस्ट कर भी दो तो आप 25 क्वेश्चन सही कर पाओगे 30 में, है ना, बेस्ट से बेस्ट कंडीशन। लेकिन उन 20 दिनों में आप इजी यूनिट्स और मीडियम यूनिट्स को कवर कर सकते थे जिनसे 70 to 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो आप रेदर देन हार्ड यू शुड फोकस ऑन द इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस। ओके, नाउ ये तो हो गई हमारी एक सिंपल मेथोडोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जॉब पे हो, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, फॉर एग्जांपल आई वाज डूइंग जॉब फ्रॉम 10 to 6, ओके, so we are having very limited time, so how you can qualify UGC NET examination in those conditions? Okay, so the very first thing is basically मॉर्निंग। मैं समझता हूँ कि आपकी जो शिफ्ट है वो 9 बजे स्टार्ट होती है और आपको शायद 8 बजे अपने घर से निकलना पड़ता हो। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा रिलोड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस अवेलेबल हो जाए। ओके, सो 8 से 9 बजे आपका स्टार्ट होता है, जो मैं समझता हूँ 5 बजे खत्म होता होगा और आप 6 से 7 बजे तक अपने घर आ जाते होंगे, और अगर फ्रेशन अप हो रहे हो, खाना खा रहे हो, तो भी मैं समझता हूँ कि 8 बजे तक आप या 9 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। ठीक, अब मॉर्निंग में अगर हम अराउंड 6 o'clock या 5 o'clock अपनी स्टडी को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे दें, तो 5 से लेकर 8 तक आपके पास होते हैं 3 घंटे। सिमिलरली 6 to 8 आपके पास होते हैं 2 घंटे। मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ कि आपने मिनिमम 2 आवर्स आपने सुबह निकाले हैं। अब आप 9 बजे पढ़ने बैठे हो खाना वाना खा के, तो 9 से 12 तक तो आप पढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास करीबन 3 घंटे और हो जाते हैं। टोटल आपने अपने पास 5 आवर्स निकाल लिए। आफ्टर 5 you can do anything, sorry, after 12 you can do anything, you can sleep, or if you are having any personal matters you can give your time to those things also, right। लेकिन अगर आप जॉब पे हो तो 4 to 5 hours are necessity of this exam, okay। अगर आप जॉब नहीं करते हो, in that condition you are having the whole day, right। You can start your day from 6 or 7 o'clock, okay, then you can like easily grab 3 to 4 hours in morning, then in evening also you can get around 4 to 5 hours, so usually you're going to have 9 to 10 hours, okay, if you are not working anywhere, right, so you are having the upper hand, okay? But if you are doing the job, I think 4 to 5 hours are enough, okay। इससे ज़्यादा समय अगर हम दे रहे हैं तो शायद वो हमारे लिए ही नुकसान है लॉन्ग टर्म, ओके। अब हम बात करते हैं कि जो हमने 4 to 5 आवर्स निकाले हैं या 9 to 10 आवर्स निकाले हैं, उसमें हमारे प्रिपरेशंस कैसे करनी है। सो इनमें से अगर आप 4 to 5 आवर्स वाली हो तो आपको अराउंड 2 घंटे जो है वो ईजी यूनिट्स को देना है। ईजी यूनिट्स जो होती है वो आपकी फेवरेट यूनिट्स होती है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, राइट। उसके बाद में मीडियम यूनिट्स को हमें 1 घंटा देना है, और जो रिमेनिंग 1 घंटा है उसको हमें रिविजन में देना है।
इनिशियली 5 दिन तक आपको रिवीजन नहीं करना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि आपने रिसेंट वो चीज़ पढ़ी, तो आप रिवीजन करके भी कुछ इतना ग्रेट अचीव नहीं कर सकते, राइट? 5 दिन तक तो आपको ये जो 4 से 5 घंटे हैं, ये अपनी स्टडीज़ को देने हैं फुल प्रूफ, नो रिवीजन, ओके? Then after 5 days, you will to start doing revision of 1 hour starting from the first day. Like आज जैसे मान लो मैंने पढ़ा है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के बारे में, ओके, 2D के बारे में कंटिन्यूसली 5 डेज तक, ठीक है? तो जब मैं ये 6th डे पे अपना रिवीजन स्टार्ट करूंगा, तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट 2D के फर्स्ट टॉपिक से अपना रिवीजन स्टार्ट करूंगा, और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट टू 1 आवर ही देने हैं। इसके अंदर अगर आप 30 मिनट दे रहे हो अपने रिवीजन में, तो 30 मिनट जो है वो आपको मॉक टेस्ट हो गया या जो क्विजेस होते हैं डेली क्विजेस, उनको देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देने हैं, ओके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मस्ट माय वर्ड। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे तो भी 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर्स है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कितने उसमें हमें ऑप्शंस दिए गए थे, कोई आंसर हमने अटेम्प्ट किया है तो वो क्यों किया था। इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप फोरेंसिक्सपीडिया की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जस्ट ओपन द वेबसाइट हियर, दिस इज आवर वेबसाइट, so we are having the pre-guide skills, okay? तो हमने एक कोशिश की थी कि हम जितने भी पेपर्स होंगे उनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो डीप मैनर में प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है कि वो क्वेश्चन पढ़ता है एक लाइक फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर एक सस्पेक्टिव फुटवियर है या एक रिटन स्टेटमेंट है, ये फिजिकल एविडेंस हो सकता है। मैं सपोज कि सस्पेक्टिव फुटवियर एक फिजिकल एविडेंस है ना, तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ ये इज द आंसर और मैं ए पे क्लिक करूंगा, राइट? लेकिन ये आंसर इसका क्यों है या बाकी सारे जो आंसर्स हैं ये क्यों नहीं है, इसके बारे में हम उतनी स्टडी नहीं कर पाते हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इसके बारे में स्टडी कर पाए, राइट? तो हम क्या करते हैं या हमने क्या किया है, सॉरी, एट फोरेंसिक्सपीडिया हमने सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी ऑप्शंस थे उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन भी किया है। फॉर एग्जांपल कि अगर सस्पेक्ट फुटवियर आंसर है तो वो क्यों है, राइट? तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के ही पूरे टॉपिक के बारे में पता चल सकता है कि ये आंसर इसका क्यों हुआ था, क्या रीजन था। सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे सेक्शंस है, राइट? Let's suppose कि इसका आंसर कुछ भी है, let's suppose A is the answer, okay? Now in that condition अगर आप कहीं और से इसकी स्टडी कर रहे हो तो आप A पे क्लिक करके अपने आगे बढ़ जाओगे। अगर वो सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो आप आगे बढ़ जाओगे, राइट? लेकिन फोरेंसिक्सपीडिया पे क्या हो रहा है कि आपने जो आंसर किया है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी कि वो आंसर क्यों था या बाकी जो आंसर है। फॉर एग्जाम्पल बी इज द आंसर, बट आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 75 का मतलब क्या है या सेक्शन 302 का मतलब क्या है या सेक्शन 92 का मतलब क्या है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपका टाइम सेव करेगी, ठीक? तो आपको बेसिकली कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी फॉर माई हिंदी, तो आपको इतनी आवश्यकता नहीं है कि कहीं और जाकर आपको इन टॉपिक्स को वापस सर्च करना पड़े या सेक्शन 75 के बारे में पढ़ना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और ऐसा हमने हर क्वेश्चन के साथ किया, ठीक है? तो आप अगर इसके मेंबर हो तो आपको ये एक बेनिफिशियल टाइम सेविंग ऑप्शन दे सकता है। सिमिलरली अगर हम PYQs को हटा दें तो मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन होते हैं जो आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किए, वो आपके लिए भी होते हैं। ऐसा नहीं होता, PYQs कैन बी रिपीटेटिव, ओके? फॉर एग्जांपल 2004 में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो 2005 से 2006 के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आए, राइट? तो अगर आप वो सारे PYQs कर रहे हो तो एट द एंड you have the access of all the questions, but what about the new questions? Okay, those questions which was not asked in previous year question papers. So in that condition, mock tests play a very important role. Daily quiz play a very important role. Similarly, आपका काम थोड़ा और आसान हो सके इसके लिए हमने स्टडी टेबल्स बनाए हैं।
स्टडी टेबल्स बेसिकली में वो रिवीजन के लिए टेबल जो आपको बहुत इजी वे में आपका रिवीजन करवा सके, आपकी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ा सके. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अबाउट द फाइबर इन फोरेंसिक्स एंड देयर मेल्टिंग टेम्परेचर. So these all are the fiber names. These are the classification. For example, cotton is a natural plant-based substance, right? Similarly, let's suppose nylon is a polyamide. Okay, it's a synthetic material. तो इनका क्या टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉटन बर्न होता है तो ये कंपोज ऑफ सेलुलोज, तो ये बर्न होता है, मेल्ट नहीं होता है. सिमिलरली नायलॉन जो है वो मेल्ट होता है बर्निंग से पहले, एक लिक्विड फॉर्म क्रिएट करता है, राइट, एक डार्कर फॉर्म क्रिएट करता है. तो स्टडी टेबल्स आपको इस तरह से हेल्प करेगी कि आप जो आपका कंटेंट है इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में ही कवर कर पाओगे. ठीक है. सो जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम अदर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. आई होप मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा अगर मुझे टाइम मिलता रहा तो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस क्वायरी के ऊपर चाहिए या कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए. अगर आपका टॉपिक या क्वायरी सही होगी तो मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक या क्वायरी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ. लेकिन अगर आपके 2-3 टॉपिक्स के ऊपर क्वायरी है, in that condition you have to take the premium subscription or membership. In that condition only I will be able to help your queries or solve your queries. Okay. Rest you can write your comments in the comment box, and if you like this video and if you think this video help you in your UGC NET questions, in that condition you can share it amongst your friends. And in the next video, I will tell you about the important books, the important things which you have to cover for the UGC NET preparation. Okay, so thank you so much, and have a nice day.